अस्सलाम वालेकुम and welcome to Sports Literati. मैं हूँ रोहा नदीम. We are back once again with another episode. Once again, I know मैं हर शो के स्टार्ट पे ये कहती हूँ, but we have so much to go into today because obviously एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी चीज़ें हुई हैं, whether it's about cricket या other sports. पाकिस्तान स्पोर्ट्स में अगर आप काम करते हैं तो यू जस्ट कीप कमिंग अक्रॉस headlines after headlines and it's our job to bring to you those headlines but also dissect them, analyze them and try and make sense of what we are seeing and what we're hearing. So in that regard a lot to go through today. हमारे यूजुअल्स भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. स्टार्ट हम करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ who are well in China, who are going to be playing the Asian Champions Trophy. A lot of history there with the hockey team and a lot of troubles there. क्या वो financial troubles हैं, क्या वो resources के troubles हैं, priorities के issues हैं? What is the reason behind this decline in Pakistan's hockey? And of course, we will also reflect on the recent successes that the team has enjoyed and how we can build on those successes. Show शुरू करते हैं. Literati usuals, Literati gang is now the name of our panel. Sports analyst and expert Hassan Azam has joined us once again. Hassan, assalamu alaikum. Welcome back to the show. Are you buzzing to go today? Walaikum assalam. Yes, recovered after a couple of days after the debacle Already? at Rawalpindi. Still trying. I mean, you have to find positivity somehow because it's becoming a bit of a norm, as we were talking about this, before the show kicked off. Okay, how we've had to deal with sort of Pakistani seeing this decline from the ODI to T20 and now the test format, but you have to stay positive. We have to stay positive and we are joined by another regular on the show, cricket commentator and broadcaster Ali Yunus. Ali, assalamu alaikum, welcome back to the show. हम हॉकी के ऊपर स्टार्ट कर रहे थे और आपकी थोड़ी सी उस पर भी राय लेंगे कि पाकिस्तान हॉकी का डिक्लाइन. आई एम श्योर आप भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि क्या हिस्ट्री रही हुई है पाकिस्तान हॉकी की on the world stage and now we are in that place where we haven't made the Olympics 3 times in a row. Your starting thoughts on that? Well, first of all, thank you so much. And जैसे हसन ने कहा, I'll try to get something positive. जैसे हसन इतना positive हो गया उसने अपना start लिया है, but मेरे पास इस वक्त as far as hockey is concerned, there is nothing much to talk about as far as positivity is concerned. But to be honest, it's a shame. It's a shame कि once world champions, once world beaters, और आज हमारे ऐसे हालात हो गए हैं कि अब हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम टीम को भेज सकें. हमें उधार क्रेडिट कार्ड्स पे उनको टिकट्स लेके देनी पड़ रही हैं. इट शोज़ क्या इट्स सच अ फेलियर ऑफ द सिस्टम कि हमारा जो सिस्टम है उसको कितने बुरी तरीके से फेल हुआ है कि हमारा कौमी खेल है और उसको हमने इतनी बुरी तरीके से निगलेक्ट किया है कि अब हमारी टीम का ये हाल है कि अब आई डोंट थिंक सो कि हम किसी एक भी प्लेयर को जानते होंगे, किसी एक भी प्लेयर का नाम हमें याद होगा. कहाँ हमें पूरे 11 के 11 प्लेयर्स के नाम याद होते थे एक ज़माने में. आई रिमेंबर वॉचिंग अ मैच हेयर इन लाहौर जहाँ पे पाकिस्तान और हॉलैंड का मैच था और जैम पैक स्टेडियम था, हमें जगह भी नहीं मिल रही थी. एक वो दौर था और एक आज का दौर है. तो इट्स अ शेम एज अ नेशन वी हैव फेल्ड हॉकी और आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी इट रिकवरिंग एनी टाइम सून क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी का भी कोई इतना मतलब इतना फोकस है कि रिवाइव किया जाए हॉकी को और ना ही हमारी जनरेशन अब हॉकी खेलना चाहती है. आई डोंट रियली नो कि अभी इतना बड़ा जो रिवैम्प है कैसे होगा. ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसका रिवाइवल होगा और हम उस पर भी बात करेंगे. लेकिन रिवाइवल भी स्टेप बाय स्टेप होता है. जब आप ये मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपकी टीम जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलती है, उनके अगेंस्ट खेलती है, and when you have the resources to send your teams to participate in such tournaments, वही आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बनता है and then you get ready for stages like the Olympics. अभी हम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो है उसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम हिस्सा ले रही है जो कि चाइना में खेली जा रही है. एशिया की सारी बड़ी और स्ट्रॉन्ग हॉकी टीम्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी और स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं. हसन, सो मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट कंसिडरिंग कि अभी कुछ माह पहले ही पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला जहां पे बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई. उन्होंने फाइनल तक वो अनबीटन भी रहे और एक कन्विंसिंग रन था उनका. फाइनल में वो हार गए अगेंस्ट जापान लेकिन फिर भी व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज. उस परफॉर्मेंस के बाद एक दम से एक सॉर्ट ऑफ रीअवेकनिंग हुई थी. आई एग्री विद व्हाट अली हैज़ पॉइंटेड आउट कि हमारे यूथ का इंटरेस्ट भी शायद कहीं ना कहीं अलॉन्ग द ईयर्स ख़त्म हुआ है. बट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट final and that runners up position in the Azlan Shah Cup,
How did that happen? I think a major part of why that happened is because of our coach Oldsman, जिनका थर्ड स्टेंट है पाकिस्तान टीम के साथ. वो 2 दफ़ा पहले भी रहे हैं और जिस तरह अली ने बड़ी ज़रूरी चीज़ें हाईलाइट की, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी पीछे रह गया. हम अरशद नदीम जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज़ अ मिरेकल. आपने भी शो में कहा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग हिम कि हमें उसको एक अपना बेस नहीं बनानी चाहिए. दैट शुड बिकम अ हार्ड ब्रिंगर ऑफ चेंज रादर दैन के बगैर तैयारी के, बगैर कोचेस के, बगैर फैसिलिटीज़ के भी गोल्ड मेडल आ जाते हैं तो हमें इसमें इन्वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है. इट्स एक्चुअली द कंप्लीट ऑपोजिट. दैट टेल्स यू कि आपके पास टैलेंट है और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे. हॉकी इज़ द सेम. हम बात करते हैं पास्ट सक्सेस की. हॉकी की सक्सेस वाज प्री, जब हॉकी चेंज हुई उसमें एस्ट्रोटर्फ आई. आज एस्ट्रोटर्फ के एक फील्ड को सेटअप करने की कॉस्ट इज़ $500,000 और आपका पूरे साल का जो हॉकी का बजट है दैट्स लाइक 4 to 5 million rupees. लाइक हाउ विल यू एवर get to do that? So who needs to come in? The state needs to come in here because they're the patron in chief of hockey as well. जिस तरह क्रिकेट के हैं, they need to invest in hockey. अगर हमने वो रिजल्ट्स देखने, ऑल्टमैन की बात कर लें, सलमान बकर जो कि गोलकीपर रहे पाकिस्तान टीम के, 2012-13 में पहली दफ़ा पाकिस्तान 12 में भी जीता, 13 में भी जीता यही चैम्पियनशिप. उनका अपना बयान भी है, वो कोचिंग कर रहे हैं एज अ गोल कीपिंग एक्सपर्ट नेदरलैंड्स में. एंड व्हाट ही सेड एंड व्हाट ऑल्ट्समैन सेड वाज कि आपके पास कोई फीडर सिस्टम नहीं है, आपकी कोई नेशनल लीग नहीं है, आपके पास एस्ट्रो टर्फ्स नहीं है खेलने के लिए. अब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू करेक्ट. So it's a funding issue primarily. फंडिंग एज वेल. देयर इज नो फीडर सिस्टम. अली ने बात की कि लोग खेलना नहीं चाहते, वो ग्राउंड जिसमें खेला जाता था वो खत्म हो गए हैं. But यहाँ पे इसी के साथ मैं लिंक करूँगी कि there was a time when we had school and institutions and colleges all chipping in and creating that ecosystem जिसमें प्लेयर्स भी हिस्सा लेते थे. फिर प्लेयर्स वहाँ से स्कॉलरशिप्स लेके कॉलेजेस में जाते थे और एक पूरा पाथवे इस तरह से बनता था. क्यों हम स्कूल लेवल पे भी अब और कॉलेज लेवल पे भी स्पोर्ट्स को, हॉकी को वो इम्पोर्टेंस देना ख़त्म हो गए? बिकॉज अगर पैसे नहीं है तो टैलेंट तो है ना. देखिए पैसे इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा. बिकॉज अब वो हालात शायद नहीं रहे जो हमें 90s में या 2000 में हमें पहले हालात थे कि आपका गुजारा हो जाता था. अब लड़कों को, अब आपको हमने जैसे एक बार पहले भी बात की थी कि आपको उनको थोड़ा ग्लैमर दिखाना पड़ेगा, उनको फाइनेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि ये एक अच्छा लुक्रेटिव आपका करियर हो सकता है अगर आप इसमें मेहनत करें. बट अगेन अगर मैं हूँ, अगर मेरा कोई बच्चा खेलना चाहता है और वो देखेगा कि नेशनल टीम की कोई जो टिकट है वो भी क्रेडिट कार्ड पे उधार पे लेके जा रही है, तो मैं उसको नहीं चाहूँगा कि वो हॉकी में परसू करेगा. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा. और इसी तरीके से बिल्कुल हसन ने सही बात की है कि अगर आपकी लोकल लीग्स नहीं होंगी या आपके इस तरीके से फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करने की वाले एवेन्यूज़ नहीं होंगे तो लोग नहीं खेलेंगे. अब वो ज़माने या वो टाइम चले गए. अब और बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास और बहुत एवेन्यूज़ हैं पैसे बनाने के लिए, तो आप वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा. इसलिए हमें कलेक्टिवली एज अ स्टेट येस नंबर 1, बट देन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी, स्पॉन्सरशिप्स को भी मिलके कुछ करना पड़ेगा. मे बी स्टार्ट अ लोकल लीग, इसके अंदर आप बाहर से लोगों को बुला सकें और कोशिश करें कि आप हॉकी स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स या जलसे ना करें. Point to be noted there, which is a fair point. Even to start a league, I think the state has to get involved. Where they right, the private sector as well. You're absolutely right. And this finances didn't just all of a sudden dry up. They dried up over a period of time. And a lot of the current players blame the ex-players on that and saying they reveled in their achievements of the past, of the 60s, 70s and 80s. वही ग्लोरीज जो हम एक टाइम पे जीते थे, वही ग्लोरीज बार बार जब आप रीलिव करेंगे और उन्हीं को अपनी दुनिया बना लेंगे, अपना यूनिवर्स, और फिर आपकी लिमिटेशन बन जाएगी वो. Yes, and we have to get past that point that we are not the team or the hockey nation we used to be. And to get into this current era, we need to invest into this. Our board needs to. और होता क्या था, जिस तरह आपने फीडर सिस्टम की बात की कि ना सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती थी, फिर डिपार्टमेंट्स उन्हें उठाते थे जो उन्हें ऑल ईयर हॉकी खिलाते भी थे, जॉब्स मिलती थी. एंड व्हाट आर वी मिसिंग आउट इज दुनिया भर के वही हॉकी प्लेयर्स फिर जाके डच में, जर्मनी में और जगह पे जाके लीग्स खेल रहे हैं. देयर ब्रिंगिंग दैट मनी इनटू देयर ओन कंट्री which counts as remittance or foreign investment or whatever you want to call it in terms of economic sense. How that makes sense to a country's economy, because that money is coming back to your country. And I think that's why athletes can be a big producer of that income to that country, and I think we are hugely missing out on that. And मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि एथलीट्स को बल्कि थोड़ा सा लिमिट किया जा रहा है कि आप लीग्स नहीं खेल सकते, अदरवाइज यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. तो जो एनओसी के मसले हैं वो आई थिंक हॉकी के अंदर भी है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग के एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत आप एक
आप एक तरह से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आए जिसमें आप प्लेयर्स को उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचने दें अली, और फिर उस तरह एक सिस्टम तैयार करें, एक बैलेंस तैयार करें कि इफ़ अ प्लेयर doesn't want to sit idly for the whole year, he wants to go abroad and play leagues and अपनी गेम इम्प्रूव करें, बिकॉज डोमेस्टिक तो कुछ नहीं हो रहा, खेलने जाना है तो बाहर ही खेलने जाना है ना। आई थिंक देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको उनको इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप जाइए, आप वहाँ से जो एक्सपोजर लेके आएंगे, वहाँ पे जो जितना उनका जिस तरीके से वहाँ हॉकी खेली जाती है, बाकी कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान की टीम के साथ वही चीज़ें अप्लाई करें जो वहाँ पे हो रही हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो फिर आप वही बात है कि जैसे हसन ने कहा कि आप अपनी लीग शुरू करें, फिर आप अपने ही घर के अंदर सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग अप करने की किसी को ज़रूरत ही ना पड़े। लुक व्हाट इंडिया डज, उन्होंने हर चीज़ का अपनी पहले लीग शुरू की है। उनके किसी एथलीट को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी हर चीज़ का जो टेक केयर है वो उनके लोकली हो रही है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी क्रिकेट को देख लें या किसी भी फील्ड में उनका कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर किसी और जगह, किसी और मुल्क जाके खेलता होगा, क्योंकि उनके अपने घर पे बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया है। तो हमें शायद सबसे पहले ये देखना होगा कि घर पे हमारे क्या है, बाकी रौला तो पैदा बाद निकाल लें। Absolutely. 2019 onwards until the Olympics, एक हॉकी पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर 22 गेम्स खेल रहा ऑन एवरेज 365 दिन में, तो बाकी दिन वो क्या कर रहा है? He is not even playing there is no domestic structure. कुछ नहीं है, वो खुद, बल्कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी वो अपनी खुद से मैनेज कर रहे हैं, और he is completely driving his own training, development, growth, success. But the sad part is कि the moment जब आपकी टीम या आपके प्लेयर्स एक मेडल जीतते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जीतते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं और वो क्लेम करना चाहते हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर आपको उन एथलीट्स को उस टाइम पे भी सपोर्ट करना चाहिए जब वो इस जर्नी से गुजर रहे हैं, जब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, जब उनको कोई नहीं जानता। सो आई थिंक अ लॉट टू पॉन्डर ऑन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट्स टाइम नाउ to address the elephant in the room. Gentlemen, I don't think we can prolong it any longer. We have to talk about... I guess there's a tiger in the room now. We must talk about what happened in Rawalpindi. As much as we'd like to postpone that, I think बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि confusion सी छाई हुई है। मैच देख रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, conditions क्या हैं, pitch कैसे behave कर रही है। In terms of what went wrong, there's so much that went wrong for Pakistani team. Captain ने खुद यही कहा है कि we have made so many mistakes. So it's hard to pinpoint where exactly things went wrong. I mean, initially, let's start with the squad, shall we? Yeah, I mean, even just to begin with the squad, आप एक स्पिनर के साथ गए, but even then जो आपने selection किया 2 दिन पहले मैच से, to see the wicket, कि आप एक ऐसी विकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे अगस्त में पिंडी में, एक गर्म वेदर में, जहाँ पे पेस और बाउंस आपको मिलना था। फिर उसके बाद जो कुछ बयान आए, मुझे बहुत मतलब दे वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि 3 घंटे पिच को धूप लग गई तो उससे पिच चेंज हो गई। वो तो अगर टाइम पे मैच स्टार्ट हो जाता वो धूप तब भी लगनी थी पिच को। मुझे ये था कि अगर आप टॉस के वक्त भी पिच को देख रहे हैं कि बिहेवियर इसका चेंज होगा, आई मीन इवन इफ इट्स अ ड्राई सॉफ्ट सरफेस अंडरनीथ, और उसके अगर आप घास भी छोड़ दें, यू कैन ऑलवेज चेंज योर 11, राइट? बट वी बैक दैट अप्रोच। उस अप्रोच में अगर आप उस अप्रोच से चले भी गए, आवर बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क, आवर फास्ट बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क। आई मीन वी लुक एट शाहीन शाह अफरीदी एज द लीडर ऑफ द अटैक, ही वाज नोवेयर नियर वेयर ही इज सपोज्ड टू बी एट हिज बेस्ट, ही वाज इन हिज मिड 130s। आप उनकी बात करें, नाहिद राना कंसिस्टेंटली एवरेज स्पीड उसकी 145 आ रही थी। पाकिस्तान का कोई बॉलर इक्का दुक्का बॉलों पर 140 से ऊपर जा रहा था। टोल्ड यू द रिदम वाजंट देयर। लास्ट टेस्ट मैच हमने दिसंबर में खेला और ये वही फास्ट बॉलर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट फिर नहीं खेलते। दे आर बिजी विद द टीम ऑल ईयर राउंड। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट आई एम टेलिंग यू देयर इज अ क्लियर गैप व्हिच वाज देयर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटजी and consistency and bowling in those areas and bowling consistently. आपने पेस की बात जो की 100% agree on that, लेकिन अली let's go back a little bit और बात अगर हम करें पिच की और declaration की, क्योंकि a lot is being said about that, the way that Shan declared on 448, थोड़ा सा वो चाह रहे थे कि पेस का एडवांटेज लिया जाए, अपने बॉलर्स यूज़ किए जाएं, सरफेस को यूज़ करें। none of that happened. देखिए आई थिंक बहुत ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश की गई उस डिक्लेरेशन से, मुझे ये लगता है, क्योंकि जब आपने 1.5 दिन बैटिंग कर ली थी, आपको एहसास हो गया था कि ये पिच बहुत फ्लैट होने वाला है और अंदाज़ा हो गया था कि पिच कैसा है, तो फिर आप एटलीस्ट अपने आप को सबसे पहले सिक्योर करें। और वो सिक्योर तभी होना था जब आप 550 रन 500 550 रन करते और थोड़ा टाइम और ले लेते, अंदर से निकाल लेते।
आपने तो बहुत जल्दी उनको प्लेट में रख के दे दिया कि लीजिए आपकी इट्स योर गेम टू लूज़ फ्रॉम देयर ऑन, जब आपने बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया। एंड सेकेंडली आपको क्रेडिट देना होगा मुशफिकुर रहमान एंड टीम को, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान है और पाकिस्तान बांग्लादेश है। हर 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 आप बैटिंग की बात कर लें, आप इवन फील्डिंग की बात कर लें, आप बॉलिंग फास्ट बॉलिंग की जैसे हसन ने जिक्र किया, ऑल डिपार्टमेंट्स आई थिंक बांग्लादेश वर अ वे सुपीरियर टीम इन दैट टेस्ट मैच। आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास वो डेप्थ नहीं रह गई है, आपके पास वो कंसिस्टेंटली 145 प्लस वाले बॉलर्स नहीं हैं, एवरेज स्पीड 137 138 वाले बॉलर्स हैं। और ऐसी कंडीशंस में आपको ज़रूरत नहीं थी शायद कि आप 2 दिन पहले ही अब्रार को टीम से बाहर कर दें और उस तरफ भेजें। आप वेट कर लें, आप अगर वो एक मैच नहीं खेलेगा तो कुछ नहीं होगा, वो टीम के साथ रहेगा, एक्सपोजर मिलेगा। आप एंड तक वेट करें, जब तक टॉस हो नहीं जाता तब कंडीशन देखें एंड देन आप अपने 11 बनाएं। अच्छा, ये बात भी अब कंफ्यूज मजीद हमें कर रही है कि हमारे पास 140 प्लस वाले बॉलर्स नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, वो भी हमारे स्क्वाड में नहीं है। जो बैटर्स जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं, जो कि आपके वर्ल्ड बीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, बाबर आजम की अगर आप बात कर लें, उनसे स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे। उनकी कितनी 13-14 इनिंग्स होंगी जिसमें उन्होंने 50 क्रॉस नहीं किया। एज अ होल ही अगर आपके पास ना वो रिसोर्सेज हैं, और फिर चेयरमैन जो हैं पीसीबी के वो ये आके कह रहे हैं कि हमारे पास फीडर सिस्टम में टैलेंट नहीं है जो आके इन प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके, और फिर वो एक चैम्पियंस कप को लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा दिस इज़ गिविंग अ रियली डिसअपॉइंटिंग image, because now we are seeing ex-cricketers around the world who are also appalled at what is happening in Pakistan cricket. Runs में तो हमें हमेशा इशू रहा है, but pace में हमें क्या हुआ है? I think that's a very good point. Initially जो आपका पहला point था कि feeder system की जो उन्होंने बात की, देखें T20 वर्ल्ड कप के रिजल्ट से या ODI वर्ल्ड कप के रिजल्ट से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हाउ यू डिफाइन दैट प्रोसेस, एक पाथवे जो बन रहा है, जो अगले प्लेयर्स को तैयार करके खड़ा किया हुआ जिसने, उसमें चेंज आने की और उसको सीधा होने की ज़रूरत थी। वो एक अच्छी चीज़ थी। वो आपको बार बार ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि उस चीज़ को चेंज होना था और वो हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स की जो आपने बात की, आई थिंक जिस तरह आपको कंडीशंस वो बनाना होंगी जिस पे आपके फास्ट बॉलर्स एक रिदम में उस लाइन और लेंथ पे और उस फ्लुएंसी से बॉलिंग कर सकें। मुझे फॉर इंस्टेंस समबडी लाइक मोहम्मद अली, मुझे उन पे तरस आता है कि आप उन्हें सेकंड टाइम वो टीम में आए और फिर सड़क पे आके उन्होंने बॉलिंग कराना शुरू कर दी। इट्स सो अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। ही इज़ अ ब्रिलियंट लाइन लेंथ स्विंग बॉलर जिसे पिंडी जैसी विकेट मिल रही है टू प्रूव हिमसेल्फ। इट्स ऑलवेज गोना बी अ स्ट्रगल फॉर हिम, एंड आई थिंक कूडोज टू बांग्लादेशी टीम। आई एम नॉट एज पर से अवर्स टू कि जब हमने डिक्लेयर किया, मैं उनकी बात से एग्री भी करूंगा कि आप पिच को देख रहे थे, आप लंबा खेल सकते थे, लेकिन जब आपने डिक्लेयर कर दिया देन योर बॉलर्स हैड टू बैक दोज प्लान्स, राइट? जिस तरह आपने कहा दे हैड टू हिट दोज लेंथ्स, दे हैड टू बॉल एट द राइट प्लेस, वो हमें नजर ही नहीं आया। इनफैक्ट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि जब सेकंड न्यू बॉल की बारी आई तो वी वर ऑल थिंकिंग कि नसीम और खुरम शहजाद जो सबसे 2 लीथल बॉलर लग रहे हैं वही लेंगे। शहीन कम्स इनटू द अटैक अगेन एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी शहीन देयर। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स द फर्स्ट टेस्ट मैच, हमने पहले भी बात की थी, शान का पहला टेस्ट मैच है होम पे भी। बॉलर्स का रिदम आना, वो पेस बढ़ना, वो सारी चीज़ें ये आपको नज़र आती जाएंगी एज द टेस्ट मैचेस गो अलोंग। बट इन टर्म्स ऑफ हिटिंग योर लेंथ, दैट्स कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल एंड यू हैव टू डू दैट एज बॉलर्स। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज मैं अब क्योंकि हम पेस के बारे में बात कर रहे हैं एंड हमने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में इतनी बात की है, सो मच हैज़ बीन सेड अबाउट हिम रिगार्डिंग हिज वर्कलोड मैनेजमेंट। अली, आपको क्या लगता है अगले टेस्ट के लिए शाहीन शाह अफरीदी विल ही बी पार्ट ऑफ द 11 एंड अपकमिंग जितने भी टेस्ट हम देख रहे हैं होम सॉइल पे एटलीस्ट, कहाँ पे हम उनका वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज क्लियरली हिज बॉडी, ही इज फिजिकली अनएबल टू डिलीवर एट दैट पेस एंड इन दोज एरियाज। देखिए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आप उनकी जगह मीर हमजा को खिला सकते हैं, क्योंकि मीर हमजा एटलीस्ट आपको नए बॉल से वो स्विंग करके देंगे जो शाहीन अफरीदी को नहीं मिल रही है। ये अब हर बंदे को ये बात पता चल गई है कि उनका नया बॉल अब उस तरीके से स्विंग नहीं हो रहा है। तो देयर इज़ नो हार्म कि आप थोड़ी देर क्रिकेट से ऑफ ले लें। आप अभी इज जस्ट बिकम अ फादर, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद द बेबी। को महीना 2 महीने आप ऑफ लें, 3-4 टेस्ट मैचेस छोड़ दें। आप इतनी इनसिक्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप योर प्लेस इज़ देयर, व्हेनेवर यू कम बैक आपको अपनी जगह वापस मिल जाएगी बिकॉज यू आर गुड इनफ। बट अगर इस वक्त आपकी फॉर्म नहीं है तो आप मीर हमजा का टाइम मत ज़ाया करें, आप उनको खेलने दीजिए। आप खुद कह दीजिए कि मीर हमजा इज़ बेटर देन मी एट द मोमेंट, आप उसको खिलाएं और फ़ायदा उठा सकते हैं।
बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज वो जो फेयर ऑफ लूजिंग योर स्पॉट है वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, एंड नोबडी वांट्स टू डू दैट. I think that's a very good point. And I think in some respect, as management or as a captain, you have to be bold yourself. I mean, I was expecting Shan wouldn't even hand the ball to Shine, even if he was saying कि मैंने करना है over, because you as a captain take that decision. And now as a management, we see हमारा एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है, हमें नजर आ रहा है कि उसको रेस्ट चाहिए, तो we don't, then Pakistan comes first, right? The team comes first. Everything else is second. तो फिर आप उन्हें बिठाइए, अगर उन्हें नहीं भी बैठना चाह रहे, you have to give him a rest. As he said, मीर हमजा is bowled brilliantly. ये जो अभी पाकिस्तान ए का मैच हुआ बांग्लादेश ए के खिलाफ भी, he is exponent of the new ball. वो दोनों तरफ बॉल निकालते हैं, उनकी सीम पोजीशन, उनकी लाइन लेंथ, बड़ी देर से वो इस स्ट्रक्चर में और इस जगह पर खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट. बिल्कुल. तो आई थिंक अ वेरी वायबल ऑप्शन. And you know we can expect that to happen because जितनी हम bold decisions को associate कर रहे हैं with Shan Masood, expect that there will be some changes and there will be some readjustment to the approach. हम bowling की बात करें, pace की बात करें, let's take a look at how Bangladesh bowled, especially in that second innings against Pakistan, made it difficult for the batters to stick around, to get that momentum, and wicket after wicket. Ali, your thoughts on how they delivered and how brilliantly they made use of the surface? Yeah, I think उनसे ज़्यादा जो poor shot selection I would say, they were tired legs, no feet movement, खड़े खड़े आप अगर साइम अयूब का भी डिसमिसल देखें चले जाते हैं, तो यही आई थिंक जब आप 2.5 से 3 दिन आपने फील्डिंग की होती है इतनी हब्स के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, तो आपकी टांगें नहीं चलती हैं, आपको बेशक रात का रेस्ट भी मिल जाए, तो इतना आसान नहीं होता है कि आके आप एंड नोइंग कि आप मैच जीत नहीं सकते हैं. आपने ड्रॉ शॉट्स देखें, जैसा अली ने कहा, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉटें लगाते रहे. ये पहला आउट था उन डिसमिसल्स में जो विद इन द स्टंप्स एलबीडब्ल्यू हुआ बिकॉज ऑफ द लो बाउंस. लेकिन उसके अलावा इट वाज एज इफ वी वर गिविंग दोस विकेट्स अवे रादर देन बांग्लादेशी taking those wickets. But kudos to their discipline, who went about their business. And you know, it's so. तो assistant bowling coach Pakistani है Azhar Mahmood, and of course he has been around. He's grown up in. But आपने कहा ना कि बांग्लादेश ने कितनी जल्दी असेस कर लिया, तो वो is there to assist them कि आप किस इन कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं. डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, प्लस पाकिस्तान का माइंडसेट एज हसन सेड, शॉट सिलेक्शन, पर्पसलेस बैटिंग. आई थिंक जैसे अब्दुल्ला शफीक ने शॉट मारा, आई थिंक दैट टेल्स यू अ स्टोरी कि आप शायद आपको पता ही नहीं था कि आपने करना क्या चाहते हैं, आप शायद अपने रन्स भी करने जाएंगे, तो देयर हैज़ टू बी अ मेथड कि आपने किस तरीके से रन्स करने हैं. अगर आपको पता लग गया था कि थोड़ा अनइवन पिच है, बॉल ऊपर नीचे रह रहा है, तो दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले. ये तो आप शायद किसी क्लब क्रिकेटर को भी कहेंगे तो ऐसे नहीं खेलना है, तो ही वुड अंडरस्टैंड. जिस तरीके से अब्दुल्ला ने ये शॉट खेला है, अगैन बाबर की भी फॉर्म ख़राब है, रिजवान ने भी पुअर शॉट खेला है, सलमान टायर्ड, साउथ शकील टायर्ड, ऑल ऑफ देम आई थिंक उन्होंने मेंटली एग्जॉस्ट किया और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने फ़ायदा उठाया. चलें, बिल्कुल. अब हमने काफ़ी नेगेटिव जो एरियाज थे, नेगेटिव नहीं कहेंगे, वीक एरियाज थे, जो रियलिटीज़ थी, उनको हमने थोड़ा डाइसेक्ट किया है. एक सिल्वर लाइनिंग अगर आप इस मैच में देखें, मोहम्मद रिजवान एंड हिज रन्स विद द बैट, हिज एफर्ट, ही इज़ द टॉप रैंक्ड विकेट कीपर बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड so sought after, the way that you know he approaches all different formats, but in the longer format, मोहम्मद रिजवान और उनकी supremacy और उनके नॉक के बारे में, especially his 15 that last second innings. I mean, it felt like he was just carrying on from his first. Must highlight something here. हम बात करते हैं spinners के खिलाफ, पाकिस्तानी team is not as good as we actually think it to be, because a lot of these players don't play domestic cricket now. Ali can vouch for this. कि हाँ, domestic cricket में pitches अब वो spin friendly नहीं बनती काफ़ी देर से. हम बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और सहरा की, दोज पीपल प्लेड स्पिनर्स वेरी डिफरेंटली. उनके दौर में स्पिनर्स थे भी बड़े डिफरेंट. नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी प्ले होम मैचेस, वी यूज्ड टू प्ले देम इन दुबई, एंड नाउ वी प्ले इट हियर, और स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं होती. देन वी गो टू अदर कंट्रीज लाइक द वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड सी स्पिनर्स एंड वी लाइक, व्हाई आर वी नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, वी डोंट प्ले स्पिन इनफ. आई मीन नसीम ने आके एक बयान दिया ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, ही वाज लाइक, अगर इस तरह की फास्ट बॉलिंग विकेट्स बननी है तो व्हाई डोंट वी prefer spin friendly wickets and get some spinners on. I back that statement. If we can't change our wickets, let's change our strategy. Let's get the wickets even more dustier like they are in India, and go with the spinners to bowl for. Where are the spinners we're trying to find, Ali? Well, there are not many spinners, to be very honest. पिछले 4 साल से शायद हमने 2-3 प्रोग्राम्स पहले जिक्र किया था मोहम्मद रमीज़ का. आई थिंक ही इज़ वन लेग स्पिनर, अभी पाकिस्तान ए से खेले. देन देयर इज़ आरिफ हुज प्लेड फॉर पाकिस्तान. बट द प्रॉब्लम है कि जितने भी अब यंगस्टर्स हैं, उनका जो फोकस है दैट इज़ वाइट बॉल क्रिकेट. Nobody really wants to play
रेड बॉल क्रिकेट. अब क्योंकि आपने जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन है वो ज़्यादातर बेस कर दी है PSL के ऊपर. तो जितने भी आप यकीन करें, मुझे जितने भी लड़के मिलते हैं, ऑल दे वांट इट टू इज़ टू प्ले PSL बिकॉज दे नो दैट कि अगर वो PSL में परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत आसानी से पिक हो जाएंगे पाकिस्तान टीम के अंदर. PSL इस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं, जो स्पिनर हैं, और वो कहाँ है इस वक्त वो सिलेक्शन बेचारे में. नहीं पिक हो रहे. ये एक कंटिन्यूइंग आयरनी है विद पाकिस्तान क्रिकेट That's true. व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शंस, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दोज सर्फेसेस एंड देन रियलाइजिंग कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता हमारी स्ट्रेंथ Yeah. क्या है, वो पता होगा तो फिर हम उस हिसाब से पिचेस क्रिएट करेंगे. अभी सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे. यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. वील बी राइट बैक. जी वेलकम बैक. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज इज ऑनगोइंग करंटली. पहला मैच पाकिस्तान हार गया बाय 10 विकेट्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू द बांग्लादेश टीम फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री, बीटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन अ टेस्ट मैच. वी आर गियरिंग अप फॉर द सेकंड टेस्ट मैच. लेकिन इस वक्त थोड़ा सा जो है ना माहौल वो टेंस भी हुआ हुआ है क्योंकि बारिश की फोरकास्ट आ रही है. तो वी डोंट नो इफ वी विल गेट all of the action, but well, this is the second test match for you. We will be bringing it to you live as well, and of course 30th August को आप tune in करें. Hopefully ज़्यादा बारिश नहीं होगी. We will get the full game, the full day's game, and then of course moving forward across all 5 days हमें पूरी क्रिकेट देखने को मिले, थोड़ा सूरज देखने को मिले पिंडी में. क्लाउड्स देख के आई नो वो सबके स्टोरीज पे लगाए होते हैं उन्होंने, वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रस्ट मी. लेकिन जब आप क्रिकेट देख रहे हैं यू वांट क्लियर स्काइज, डोंट यू? सो आई थिंक ऑल आईज विल बी ऑन द क्लाउड्स, ऑन द स्काई लाइन रावलपिंडी की. और उम्मीद यही है कि अब कुछ चेंजेस हम लेके आए इस स्क्वाड के अंदर भी. क्या सुनने में आ रहा है? आप अपने इंसाइट्स बताएं. Heading towards the second test match, what can we expect Pakistan to do differently, taking into account the weather conditions as well? Yeah, I mean, weather ko it's incontrollable. I mean, you can't do anything about that. One thing is कि obviously more than ever before Pakistan team को ये होगा कि मैच पूरा हो, because they want to win this match. बांग्लादेश कभी मैच भी नहीं जीता तो कभी obviously सीरीज भी नहीं जीता. तो if we don't get a full game जहाँ पाकिस्तान को चांस मिले to win a game, they will win their first series against Pakistan as well at Pakistan's home. So this is going to be a tough one. And just a reminder for everybody who's watching, Pakistan have not won a test match at home since February 2021. That's so long ago. I can't even go back. मैं mentally भी अभी वो folder नहीं access हो रहा मेरे से. वो block हुआ है सारा. COVID था, क्या था उस time पे. But it's been a while, Ali. What can Pakistan do now to at least register a win? I mean, आपकी वो draw वाली mentality जो है वो थोड़ी सी अब आपको side पे करनी पड़ेगी and you have to really go for the kill. Yeah, absolutely. I think इनको अब सबसे पहले पिच को सही रीड करना होगा. सबसे पहले तो खुदारा इतने एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए हैं, एटलीस्ट इनको पिच को रीड करना तो आना चाहिए. अब जितनी क्रिकेट प्लेइंग 11 खेल रही है, अजहर महमूद इज़ देयर, जस्टिन गिलिस्पी इज़ देयर. आई मीन हाउ कैन यू नॉट रीड अ पिच प्रॉपर्ली? देन आप उसके आके अजीब किस्म की आप एक्सप्लेनेशन भी फिर देते हैं कि हमने रीड किया लेकिन हमारी तरह का उस तरह का निकला नहीं. तो फिर क्या रीड किया आपने अगर आप उनको उस तरह का that's like saying रीड क्या किया आपने? जो मैंने जवाब दिया वो सवाल नहीं पूछा गया था. I mean, you can't say that in an exam. You just can't. That's awful. तो सबसे पहले तो क्योंकि अब इस टेस्ट मैच की आपने जब पिच ही गलत रीड किया, उस पिच रीड के बाद आपने प्लेइंग 11 गलत की, उसके बाद आपने अपनी बैटिंग स्ट्रेटजीज गलत की, आपने जिस तरीके से टोटल करने गए वो गलत किया. तो प्रोबेबली शायद उन्होंने सीखा होगा इस टेस्ट मैच से कि कैसे खेलना है. ठीक है, अब पाकिस्तान मैच हार गया. अगर आप कुछ पॉजिटिव की बात करते हैं इसमें हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश दे रियली प्लेड वेल. आपने उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छी कंडीशंस का इस्तेमाल किया और वो बेहतर थे. बट पाकिस्तान को ये करना चाहिए, सबसे पहले तो इनको इब्रार को वापस लेके आना चाहिए टीम में. एक एक्स फैक्टर आपके पास होना चाहिए, ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन हो. एंड और मुझे लग रहा है कि जो मैंने सुनने में आ रहा है कि कामरान गुलाम एंड आपका आमिर जमाल एंड द रिस्ट स्पिनर, द मिस्ट्री स्पिनर इब्रार,
इन तीनों को पाकिस्तान टीम ने बुला लिया है, उन्होंने रिलीज कर दिया पाकिस्तान ए से। मिस्ट्री की So, जो मिस्ट्री है वो अब हमें पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो बेंच पे बैठे ना वो बैठे रह जाएं बेचारे, कब से वो बेंच अब कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट स्टिंट ऑन अ बेंच मेरे ख्याल इब्रार के पास ही हो गया होगा। तो अब उनको खिलाना चाहिए आपको, वो नो मैटर जैसी भी कंडीशंस हो, नो मैटर तेज पिच हो, क्योंकि वो ऐसे बॉलर है जिनको तो वो जिनका बॉल स्केट करता है, तो वो किसी भी पिच के ऊपर वो आपको फायदा दे सकते हैं। इनफैक्ट जितनी तेज पिच होगी वो उतने इफेक्टिव ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको थोड़ी सी फोर्स मिलेगी पिच से, जिसकी वजह से बॉल स्केट होगा और वो कहीं भी जा सकता है। So I think they have to bring him in. Yeah, I mean, somebody in commentary said, I love that comment. It's like he's the warmest back in the Pakistani team because he's been warming benches all over the world. Root said. That's, yeah, I think it's Ruj Mumtaz. Yeah. But definitely, आपका straight away वो वापस आएंगे। आमिर जमाल का चेक करने का ये है कि if he's fit, because सबसे threatening वही लग रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। I personally don't think he's going to make it back because इस टेस्ट मैच के रिजल्ट से पहले अनाउंस कर दिया था कि 2 टेस्ट मैच का उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, तो clearly he wasn't fit enough to make it into the side, वरना उन्हें ना भेजा जाया होता। It's bit of a desperate move just to see if he can make it, but I don't think he's going to make it. जिस तरह हमने कहा, मीर हमजा could be back in the squad definitely. In terms of I don't think Pakistan is going to change openers. Huraira को हम नहीं देखेंगे इस टेस्ट सीरीज में। Saim's got a 50 as well, so I think he's going to stay there. Bowling lineup में clearly Agha Salman as your 5th bowling option is somebody जो सीमिंग विकेट्स पे एक एज अ स्पिनर खेल सकते हैं, बट कैन नेवर बिकम योर फ्रंट लाइन स्पिनर। आई थिंक देयर नो डाउट्स अबाउट दैट नाउ। तो आपको उनके साथ एक फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए ही चाहिए। बांग्लादेशी साइड का तो मेकअप ही ऐसा है, क्योंकि एक ट्रेंड एक बनता जा रहा है, एक I don't know why, but why do we use our part-time spinners as regular frontline bowlers? I mean, ODI World Cup में Iftikhar Ahmed was bowling 10 overs at one point, and we had no planning. हमने T20 World Cup में भी यही देखा है कि पार्ट टाइमर्स पर रिलाई किया जा रहा है। अब हम टेस्ट में देख रहे हैं, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया आका सलमान की यूटिलिटी, बट वी हैव टू गिव योर फ्रंट लाइन बॉलर्स, योर स्पिनर्स दैट अपॉर्चुनिटी, दैट चैलेंज, that responsibility. Absolutely. Right at home, and Abrar has done brilliantly at home as well when he did make his debut. Yeah, देखिए टेस्ट मैच क्रिकेट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अ रीजन, कि वो आपको टेस्ट करता है, और टेस्ट में वही कामयाब होगा जो स्पेशलिस्ट होगा। आप बिट्स एंड पिट्स वाले क्रिकेटर्स ठीक है, T20 में आप चल सकते हैं, इवन आई डोंट थिंक सो कि ODI क्रिकेट में भी होने चाहिए। टेस्ट मैच क्रिकेट में आपके पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए। आप सलमान अली आगा से लेके 5 दिन का क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते एज अ स्पिनर, ऑल्दो इज़ अ गुड स्पिनर। वो अनलकी रहे कि उनके कैचेस भी काफ़ी ड्रॉप किए, 3 या 4 कैचेस उनकी बॉल पे ड्रॉप हुए। नॉट ऑन अ पिच लाइक दिस। हाँ, नॉट एट ऑल। अगर आपको कुछ खेल, वो तो मैंने उससे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हाउ आर द फिंगर्स, तो कहता है मैं तो मर गया हूँ बॉलिंग करा कि इतनी बॉलिंग शायद पूरे करियर में मैंने नहीं की है जितनी एक टेस्ट मैच में कर दी है। तो नो, यू कैन नॉट हैव हिम एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर। आप अगर खिलाना ही है, आप बिल्कुल अबरार को लेके आइए, और एटलीस्ट आप क्वेश्चनेबल तो कर सकते हैं कि आप सलमान अली आगा से बॉलिंग पे क्या क्वेश्चन होगा। वो ही सेड आई एम नॉट इन द टीम एज अ बॉलर। आप अबरार को लेके आएंगे, स्पेशलिस्ट होगा, एटलीस्ट आप चेक इन बैलेंस हो सकता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या हुआ, किस जगह बॉलिंग की है। एंड देन आपका आमिर जमाल का भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ अ गुड इनफ बैटर, जो आपको वो एक ऑलराउंडर वाली जो एक स्लॉट है वो फिल करता है, और इज़ गुड इनफ बॉलर जो कि 140 प्लस बॉलिंग करना जानता है, तो उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये 2 चेंजेस अगर आप आमिर जमाल फिट होते हैं, अबरार एंड आमिर जमाल कम्स इन फ्रॉम आइदर सलमान अली आगा की जगह पे या मोहम्मद अली की जगह पे, दीज आर द 2 changes which I see happening in Pakistan. Yeah, I mean you go with 3 fast bowlers and a specialist spinner, and then maybe Agha as your 5th bowling option. Ideally, but I've heard कि शायद कामरान गुलाम को भी इन्होंने बुलाया है पाकिस्तान से, तो you never know, सलमान अली आगा एंड किसी एक को दोनों में से एक आप चेंज कर सकते हैं। एंड बॉलिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बता सकेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब to be done differently in this test from the first test? I think in terms of आपको फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ा सा अग्रेसिव लेना होगा। आई मीन बीच में जब मुशफिकुर रहीम खेलते चले जा रहे थे, वी हैड 1 वाइड स्लिप एंड इट फेल्ट लाइक कि फिर आउट हमने किधर से करना है, बिकॉज द होल फील्ड वाज स्प्रेड आउट। तो आपको थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड पोजीशंस भी लेना होंगी। नाहिद राना ने आके बाउंसर्स किए कंसिस्टेंटली, एक वो स्ट्रैटेजी नजर आई। Didn't see that from any of the Pakistani bowlers. I mean, we could have tried it. Even if we wouldn't deliver that is another question altogether. I think that is something we didn't see. In terms of our line and lengths and being patient, you know, Misbah-ul Haq इतने कामयाब कप्तान क्यों रहे is because of 2 reasons for me. एक तो वो ढीठ बहुत थे एज अ पर्सनैलिटी, वो मतलब जो उनके इर्द गिर्द जो मर्जी बात कर रहा है, ही न्यू हिज प्लान। वो कहते हैं अक्सर जो जिन लोगों ने उनके साथ खेला है, सईद अजमल and other people, कि he had a computer in his mind, still does, right?
सो ही इज़ एन एनालिस्ट इन हिमसेल्फ। तो वो देख रहे होते थे, एनालाइज कर रहे होते थे, वो बॉलर्स को बॉलिंग मशीन की तरह लिटरली यूज़ करते थे कि ही वुड ब्लॉक वन एंड कम्प्लीटली, कि आपने आके इसी लेंथ पर बॉल करते रहना है, रन्स ड्राई अप कर दो, दूसरे एंड पे ये मारने जाएंगे, वहाँ से विकेट्स मिलेगी। तो ये हमें भी करना होगा एंड द बॉलर्स हैव टू बैक दैट स्ट्रैटेजी अप। I think that's key. What we saw was a lot of indiscipline from our bowlers, जहाँ पे वो 2-3 गेंदें अच्छी करके एक फुल बॉल वाइड ऐसा मिलता था कि वो आराम से went for a boundary. तो I think in terms of discipline we have to be there. In terms of our spin options we'll see a lot of spin. क्योंकि देखिए बांग्लादेश को एक एडवांटेज ये भी है कि शकीब is an all-rounder who's a pure left-arm bowler, और दूसरी तरफ मेहदी हसन मिराज in also a full-time bowling all-rounder. पाकिस्तान का अगर आप सेकंड ऑप्शन भी लेके आते हैं, विल बी अ पार्ट टाइम स्पिनर, नॉट अ कंप्लीट स्पिन ऑप्शन। तो आपकी पूरी स्क्वाड में एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर है। योर फास्ट बॉलर्स हैव टू बैक दैट स्ट्रेटजी एंड द फील्डर्स हैव टू कम इन एंड सपोर्ट द बॉलर्स। हमने बांग्लादेश की बॉलिंग में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रूव करते हुए देखी है, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, कि वो चांसेस नहीं दे रहे। और इस विकेट पे इस तरह की कंडीशंस में आप बैटर्स को सेट होने का मौका नहीं दे सकते। तो फील्डर्स आई थिंक अली विल बी की as well as key as perhaps the bowling changes in the lines and lengths, कि आपने कोई मौका नहीं देना उनको टाइटली, जिस तरह अभी अली हसन भी बात कर रहे थे। देखिए जब ऐसी पिच होती है ना, तो आपको जो हाफ चांसेस भी होते हैं उनको भी कन्वर्ट करना होता है फुल चांस के अंदर, जो कि बांग्लादेश ने किया। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने स्लिप फील्डिंग की है, आई थिंक दे वर ब्रिलियंट। और उसके अगेंस्ट अगर पाकिस्तान की आप देखें तो बहुत सिंपल चांसेस आपने दे दिए। बाबर आजम ने छोड़ा कैच, रिजवान ने कैच छोड़ा, स्लिप में कैचेस छूटते रहे। बाबर्स रिएक्शन आफ्टर ड्रॉपिंग दैट कैच, डू दैट। आप ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी विकेट्स लेना मुश्किल हो रहे हैं, तो आपको यू गॉट टू बैक योर बॉलर, और आपको वो हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड देन आपको थोड़ा एनर्जी लेके आनी होगी एज फास्ट बॉलर्स। यू कैन नॉट बॉल ऑन 135 134 इस पेस के ऊपर, ऐसी पिच के ऊपर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको 145 146 तक बॉलिंग करनी पड़ेगी। नसीम शाह हैज़ द पोटेंशियल टू डू इट, खुरम शहजाद हैज़ द पोटेंशियल टू डू इट, बट शायद वो गर्मी और वो जो ह्यूमिड और वो बारिश और वो सारे फैक्टर्स। नॉट टू फॉरगेट दैट दिस इज द फर्स्ट ऑफ 7 टेस्ट मैचेस एट होम इन दिस सीजन, सो देयर इज just so much cricket to look forward to, but already you cannot appear tired and exhausted. Correct. Because it makes you think कि अगर हम Bangladesh, and no disrespect to Bangladesh, they've played brilliantly, but we have some bigger teams coming in to play Pakistan, and we cannot appear as though we're already done and dusted, and we don't have that energy, especially when you're making a bit like confusing statements press conferences में। वो भी इस बात की निशानदेही करता है कि कहीं ना कहीं कोई confusion create हुई भी है। पहला टेस्ट मैच है। Yeah, I mean, what I'm hoping for is, I mean, उस press conference में काफ़ी जिस तरह हमने कहा कुछ चीज़ें थी which was like, do we really need to, hear this sort of a thing? लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी थी कि I don't remember the last time a Pakistani captain coming in and owning up to a lot of the mistakes. I think that was good to see. The reason is because when you own up to your mistakes, then you correct them. And I hope that we'll see those corrections, because there were a lot of mistakes from our camp. I mean, given that. और दूसरी तरफ जहाँ पे फास्ट बॉलिंग में, I mean, आप इस सोचते हो ये टीम अगर एक इन फॉर्म इंग्लैंड साइड को खेलेगी तो अब क्या होगा, तो यू हैव टू सी योर बॉलर्स इम्प्रूव। हमने न्यूजीलैंड की अंडर स्ट्रेंथ टीम के साथ अगर होम पे ड्रॉ किया है, सो वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट कैन हैपन अगर आप फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड को खेल रहे हैं। रोहा जी, एक चीज ये भी अच्छी है कि इट्स द फर्स्ट टेस्ट मैच आउट ऑफ द 7, राइट? सो योर रिदम एज अ फास्ट बॉलर इज ओनली गोना गेट बेटर आफ्टर दिस, एंड वी हैव टू से इट्स बीन अ व्हाइल। आप दिसंबर में लास्ट टेस्ट मैच खेले हुए हो, और अगस्त की गर्मी में ये सीजन होता भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। पाकिस्तान डजंट प्ले टेस्ट क्रिकेट इन दिस सीजन, तो इट वाज एक्चुअली ग्रूलिंग हीट। बांग्लादेश यूटिलाइज दैट परफेक्टली कि उन्होंने हमें मेंटली और फिजिकली टायर किया, और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हमारा रन रेट भी इसलिए कम रहा बिकॉज दैट टायर्डनेस शोड in our run up, in the time we took back into bowling the other delivery, all those things. So I'm hoping it's only going to get better, because the rhythm's going to get better of the fast bowlers. They're more used to those conditions. और ये ओवर रेट भी थोड़ा सा आप मेंटेन करें, थोड़ा मतलब इतना भी हम दोनों टीम्स को, खैर ये है कि ऑफ कोर्स दे विल लुक टू इम्प्रूव ऑन दैट इन द सेकंड टेस्ट। पर टेस्ट की हमने काफ़ी बात कर ली, थोड़ा सा सर्कल बैक करते हैं बिकॉज अब आखिरी चंक ऑफ द शो रह गया है, एंड आई वांट टू टच ऑन दिस पाकिस्तान चैंपियंस कप। इसके पीछे जो थॉट है, अली आप भी बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज चेयरमैन साहब खुद भी ये कह रहे हैं टैलेंट कम है। अब आपने मेंटर्स जो एनलिस्ट किए हैं, मिसबाह उल हक हैं उसमें, शुएब मलिक, वक़ार यूनिस,
सरफराज अहमद एंड सकलैन मुश्ताक ये मेंटोर करेंगे आपके आने वाले जो क्रॉप है प्लेयर्स की उनको? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम दिस न्यू टूर्नामेंट? देखिए आप कह सकते हैं कि ये पिछली क्रिकेट और जो पिछले 3 साल पहले जो रीजनल क्रिकेट हुई थी जिसमें नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इस 5 टीमें खेली थी, उसमें एक हो रहा था कि उसमें क्वालिटी आप क्रिकेट खेल रही थी बट क्वांटिटी ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। तो अब दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया जहाँ पे ये 5 टीमें खेलेंगी जिसके अंदर ये चैंपियंस कप जिसको कहलाया जाएगा, इसके बाद देन रीजनल कप होता रहेगा जैसे रेगुलर आपका डिपार्टमेंटल कप होता रहेगा। तो 160 टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो इन टीम्स के अंदर डिवाइड किए जाएंगे, दे विल बी ट्रेंड बाय द टॉप क्लास कोचेस। आई हैव हर्ड कि काफ़ी बाहर से कोचेस ने भी अपनी सीवीज भेजी हैं टू बी कंसिडर्ड एज कोचेस इस चैंपियंस कप के अंदर। दे विल बी ब्रॉडकास्टेड एट अ हाई लेवल। तो इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आई एम होपिंग कि वो जो डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट उसमें थोड़ी कमी आ सकेगी क्योंकि रीजनल हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएसएल in terms of देखिए PSL is just one format, it's just T20 format। ये तीनों फॉर्मेट में हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग from 12th with one day cup, then we have T20 cup and then it will finish off with 4-day cricket। तो वो पूरे एक साल के लिए ये मेंटर्स के पास ये टीम्स रहेंगी। जो कोचेज होंगे वो पूरा साल इनके साथ, इनफैक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट शायद इन तीनों सारे मेंटर्स के साथ हुआ है। तो जब आप 3 साल एक क्वालिटी क्रिकेटर्स के अंदर काम करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज पे चलेंगे तो आई एम श्योर लर्निंग तो काफ़ी होगी, पॉलिशिंग काफ़ी होगी क्योंकि इससे अगला स्टेप फिर पाकिस्तान टीम होगा। तो वो एक जो बीच में एक लेयर थी वो मिसिंग थी। आप रीजनल क्रिकेट खेल रहे थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल रहे थे बट वो कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा नहीं हुआ था पिछले साल। बट ये उस कॉम्पिटिशन से एक स्टेप ऊपर है, वो रिफाइन करेगा एंड देन प्रॉबेबली लड़का जब वो तैयार होकर पाकिस्तान टीम की तरफ जाएगा। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि इसके अंदर काफ़ी पॉलिशिंग हो सकेगी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की। बिल्कुल अनदर पाथवे सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स। या आई मीन आई गेट दैट। आई मीन एक तरह आप कह लें जिस तरह अली ने कहा कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी रीजनल क्रिकेट चल रही है उसको रिफाइन करके फर्दर छांटी करके आप कह लें कि एक टॉप क्लास डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो आपके एलीट है उनका आपस में टूर्नामेंट कराया जा रहा है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो वो जो स्क्वाड होगी वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए सेम ही होगी अंडर वन मेंटोर। इज दैट हाउ इट्स? हाँ, वो दे विल पिक 160 को आप पिक कर लेंगे पहले ही 25 प्लेयर और उसके साथ आप जिस फॉर्मेट में सूट करता होगा वो खेलेगा। परफेक्ट। आई थिंक इट्स गोना ब्रिंग अ कंपटीशन टू अनदर लेवल नाउ बिकॉज अगर उस तरह अवाम उन कप्स को फॉलो नहीं कर रही थी या उसकी कवरेज उस लेवल की नहीं हो रही थी जो मे बी अवाम आजकल which is like easily digestible for people now, I think that's going to be key because now the whole Pakistan is watching once you're playing that ODI game against another champion side, so that's really good। और जो जितने भी 5 mentors लगाए गए हैं they're very experienced in all 3 formats, they have a lot to learning जो उनको transfer की जाएगी इस lot को। And in that sense जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि AI के थ्रू वो 80% सिलेक्शन की गई है इन लड़कों की, I think what he's trying to say is कि it's a lot going to be now stat based, so it's clearly going to be performance based। तो आपकी performances जिस तरह इसमें होंगी it's automatically going to rank you in terms of who's going to be the next in line for the Pakistan team। So at least there's a pathway now, we've got a process now and I'm all for process because once you have a process in place the results will come। You can always tweak the process to उसको बेहतर करने के लिए आप हमेशा चीज़ें जब process ही नहीं होगा in place, how will you then define how you हसन इसके साथ साथ जो रीजनल क्रिकेट होगी इसके बाद उसको भी वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी चैंपियंस कप के अंदर। तो आपको उसको भी सीरियसली उतना ही लेना पड़ेगा, अपने फिटनेस को भी उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा रीजनल कप में भी, ताकि आप वहाँ परफॉर्मेंस करें और चैंपियंस कप के अंदर आ सकें। और इट्स लुक्रेटिव, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट एज गुड एज नेशनल प्लेइंग नेशनल साइड। Right, wonderful। I think it sounds great and I think it's a good plan। Exactly। और ये काफ़ी ज़रूरी था ये, वो जो एक लेयर मिसिंग थी ना, ये वो लेयर है जो मिसिंग लेयर थी। क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ को हम बार-बार रेफर करते हैं। अगर हम टीम इंडिया की ही बात कर लें और जितनी ज़बरदस्त और जितनी डेप्थ उनके पास है in terms of talent, I think Pakistan also have in them that talent and those resources। बस वही है कि आपने उनको छांटी करके उनको सिस्टम के थ्रू लेके आना है एंड लेट्स होप कि ये एक बहुत जिस तरह आपने कहा एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बनेगा इसका एंड देन इसको कैरी ऑन किया जाएगा। ये सस्टेनेबल रहेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ये नहीं कि जब नए लोग आए तो फिर ये चीज़ भी चेंज हो गई एंड लेट्स होप फॉर सम सॉर्ट ऑफ लॉन्जेविटी व्हेन इट कम्स टू दीज इनिशिएटिव्स बिकॉज ये इतने ज़रूरी होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। व्हेन यू इन्वेस्ट
you need to see those returns. Yeah. And lastly, before wrapping up, quickly अगर मैं आपसे भी पूछूं, वकार यूनिस साहब का क्या रोल अब नज़र आ रहा है हमें इस पूरे सेटअप में? We know that कुछ टाइम पहले तक he was Yeah. being जो फ्लोट हो रहा था वो ये था कि एडवाइजर Yeah. to the chairman on certain cricketing matters. What is the role looking like now? See, अभी जो रोल है वो तो अब मेंटोरशिप का ही है. He will be a mentor of one of the teams. उसके ऊपर भी देखिए एडवाइजरी का रोल पहले भी यही था कि जहाँ जहाँ जिस मैटर में चेयरमैन साहब को एडवाइस की ज़रूरत होगी, ही विल आस्क फॉर इट. इसी चैंपियंस कप के शुरू होने से पहले भी उनको एडवाइस की ज़रूरत थी, तो ही वेंट टू वकार यूनुस. एंड इट्स वकार भाई हुए जिन्होंने सब ये 5 मेंटोर्स तैयार जो पिक करके दिए हैं, जितने भी बाकी 4 हैं. But was it his own decision to not go ahead with the advisory role? देखिए, ये थोड़ा he back still end पे is. रहना चाह रहे थे. He still is. In a way, he still is. Okay. It's not like he's going 9 to 5 anymore. But अगर चेयरमैन साहब को लेट्स सी आगे पिचेस बनाने के लिए एडवाइस की जरूरत पड़ती है, he'll go to वकार भाई. अगर किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती है, he will go to वकार So भाई. in He is एक there as an unofficial तरीके से advisory he's is there, there. but Okay, क्योंकि okay, वो okay. कॉन्स्टिट्यूशन में शायद कोई उसकी है नहीं थी, शायद उस तरीके से अब कुछ क्रिएट किया जा रहा है. But as an advisor, he will always be there. But as mentorship, because he likes to be in the ground, that is what he's chosen for himself. He wants to be there in the action, and that's where he can contribute best, rather than कि आप आके पूरे सिस्टम को ठीक करें. आप जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आप यूज़ करें ग्राउंड के अंदर. And I think he's made the right choice. And we can't wait to see Yeah. the results and of course the impact, because we have seen him as a player, Yeah. we have seen Waqar Younis as a coach. Now what can he deliver outside of the ropes, outside of the dressing room, and really in that Yeah. environment where he will have of course much more control, and we will be able to see what he can do with the upcoming generation of cricketers. But more importantly, जो talent, जो mentors दिए हैं, Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Sarfaraz Ahmed and Saqlain Mushtaaq. Sarfaraz Ahmed is still an active player. He's part of the team right now, the squad. अब इस mentorship के role के बाद आपको लगता है कि सरफराज अहमद will be continuing with the team, या उनका अब future कैसा नज़र आ रहा है आपको? I think he would want to because जिस तरह के वो individual है, he's somebody who wants to be a part, who wants to play elite cricket as much as he can. I mean, in terms of a mentor role, still अभी क्वेटा में भी जिस तरह उनकी participation रही है, even for the last couple of years now, it's almost like he's transferring those skills. So there's a lot of mentorship he's already doing over there as well. So I'm not sure if he's straight away going to, you know, retire or make himself unavailable for the test side, because आपका अगला इंग्लैंड का ही टेस्ट है as soon as mid September ये जो ODI Champions Cup start हो रहा है. But then again, I won't be surprised if it's his personal decision, he does go out with this. But knowing him as an individual, I think there's still time before that happens. There's still time till Sarfaraz Ahmed will of course hang his boots. Gentlemen, बहुत शुक्रिया for your time, for your in-depth analysis. Pleasure talking to you and picking your brains as always. आप Thank लोगों you. का भी बहुत शुक्रिया for watching Sports Literati. This was all we had for you tonight. हम कल वापस आएंगे जी live 9 to 10 with more. तब तक अपना ख्याल रखिए and do tune in tomorrow at 9. See you then.